Good evening, class. In last video, we have completed the fungi and we have also completed their types also. And at last, we have discussed how the fungi are generally beneficial for the human beings and how the fungi are generally affecting for the human beings and animals also. But we left the most important topic, the harmful effect of fungi. So let it complete it today. Generally, we know that fungi are generally a ubiquitous organism which are generally found in everywhere. So depending upon the nature of fungi are very harmful for the human beings because they causes different types of disease in plants, different types of disease in animals, and different types of disease in human beings also, because fungi are generally affect our foodstuffs like pickles, like vegetables, and many more things. And fungi also affect our most of the clothing materials like our shoes, like our clothes, and many more things. Okay, apart from that, fungi are also very harmful for the human being because it causes a special type of disease which are generally caused by the fungus, and that is called ringworm. Okay, फंजाई का सबसे हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ये एक ह्यूमन बींग्स में एक रिंगवर्म डिजीज को कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक डिजीज है विच इज जनरली क्यूरेबल, but it is also very dangerous for the human beings because it also causes skin cancer sometimes when their infection is so much high and their division is so much high. That time they replicate in our cells in a very high manner, in a rapid growth. ठीक है, that time we are unable to control that types also because they become very expensive mood. ठीक है, उनका जो मूड होता है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और बहुत ही रैपिडली हमारे बॉडी में ग्रोथ करते हैं. that time we cannot control the fungi. So most important point you have to follow it. Okay, apart from that वी हैव डिस्कस द फंजाई के बारे में और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है. हमारे जनरली ग्लासेस वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे हमारा लाइकेन करता है एज बिकॉज इट कॉजेस अ रस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स एंड सरफेस ऑफ लीव्स एंड सरफेस ऑफ ग्लासेस ऑफ विंडोज. हमारे जो ग्लासेस होते हैं उनको ऊपर भी फंजाई वगैरह लगकर उनको भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस 3 to 4 आई थिंक हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई. नाउ टुडे we are going to start a new topic of lichens. Actually we have discussed so many times. Lichens is a symbiotic organism. It means they are generally survive in those places where some of the members of fungi groups are also there, phycobiont and mycobiont, we know that. Okay, apart from that, lichens is a very important things because they have also economic importance and they have also a reproduction system, they have also eating materials, and they have also a harmful effect comparison than fungi. Okay, so we are going to discuss the first, what is the meaning of lichen. Okay, lichen means a simple slow growing plant. lichen means एक ऐसा पौधा जो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, and that typically form a low crusty means most of the generally are found in the crustous region like mountains, rocks वगैरह, ठीक है, and leaf like means they don't have leaf, पत्तियां नहीं होती है इनमें, and most important are a branching growth. इनकी जो ग्रोथ होती है वो ब्रांचिंग फॉर्म में होती है. ब्रांचिंग मींस गुच्छे के फॉर्म में, एक होगा उसके ऊपर एक, दैट इज है ना, ये ब्रांचिंग फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड. एंड द रॉक्स एंड दे आर जनरली ग्रोथ takes place on the rocks and the wall of trees. जनरली होते कहाँ हैं, इनका एडजेक्ट अगर लोकेशन देखा जाए तो लोकेशन की बात करते हैं, दे आर फाउंड इन रॉक्स एंड वॉल, ठीक है, ऑफ ट्रीज, ठीक है, वॉल में या फिर ट्रीज में या फिर रॉक्स में, इधर उधर हमको लाइकेंस देखने को मिल सकते हैं. मोस्टली लाइकेंस आर फाउंड ओनली दोस प्लेसेस वेयर the different two types of organisms are also there because lichens are generally able to take their nutrition value, to take their shelter part, to take their beneficial part for reproduction. Most of the things lichens are generally take, and these are also called symbiotic organisms. Okay, apart from that we have to discuss that occurrence of lichens. हमें अब lichens का occurrence देखना है कि lichens सबसे पहले occurrence कहाँ पे होते हैं. Generally lichens are generally found on a growing almost in all places. lichens का अगर occurrence देखते हैं generally ये हर एक places में होते हैं, they occurs in all the places and they can grow in those places where the other plants cannot grow. ये ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे plants भी नहीं होते. it means they are very beneficial and they are very important conditions comparison to plants. यानी जहाँ पे plants survive नहीं करते हैं वहाँ पे lichen survive कर सकता है. it means they are very advanced form comparison to plant and they cannot grow and grow on land. ठीक है, जैसे लैंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन में,
मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स में, स्टोन्स में भी होते हैं, एंड स्टेम ऑफ प्लांट, ओके, स्टेम ऑफ प्लांट में होते हैं, एंड रूफ्स ऑफ आवर सीलिंग इन आवर हाउसेस आर जनरली, रूफ्स में भी ये देखने को मिलेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, तो लाइकेंस का अगर हम ऑकरेंस देखते हैं तो लाइकेंस आर जनरली फाउंड इन दोस प्लेसेस वेयर द प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, जहां पे प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहां पे लाइकेंस देखने को मिलता है। बट एग्जैक्ट लोकेशंस ऑफ लाइकेंस व्हिच कैन इजीली बी अवेलेबल, एंड दैट इज द लैंड, माउंटेन, रॉक्स, स्टोन, स्टेम ऑफ प्लांट्स या रूट्स वगैरह में आपको लाइकेंस इजीली दिखाई दे सकते हैं। ओके, so apart from that we are going to discuss the morphology of lichens, because there is a most of the things in your book like lichens are given, but we have to discuss the only outer structures of lichen. We are not going to deep structure of lichens. ठीक है, lichens में internal external दोनों structures दिए हैं, but internal structure is so not an important part of your exam, so we have to leave it. Okay, now second मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेंस की बात करते हैं तो लाइकेंस आर जनरली इन थ्री टाइप्स। सबसे पहला आता है क्रस्टोज लाइकेंस, एंड क्रस्टोज लाइकेंस आर दोज लाइकेंस व्हिच आर जनरली अवेलेबल ऑन रॉक एंड बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क ऑफ ट्रीज मतलब जो पेड़ की छाल होती है, दैट इज कॉल्ड द बार्क ऑफ ट्रीज। ठीक है, वहां पर और भी बहुत सारी जगह पे देखने को मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड द क्रस्टोज लाइकेंस, एंड जनरली द थैलस इज वेरी थिन। इनकी जो थैलस होती है, द ब्रॉड पोर्शन इज अ वेरी थिन, बहुत पतले होते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो ग्राफिस स्क्रिप्टा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइकेंस। ठीक है, so apart from that we have to discuss that another the foliose lichen. Foliose तीन प्रकार के lichens we have to study today, and foliose lichens means they are the leaf like thallus. इनकी जो thallus होते हैं थिन होने की वजह लीफ लाइक होते हैं, पत्तियों जैसा होते हैं। एंड एग्जांपल की बात करते हैं तो परमेलिया इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेंस, बिकॉज परमेलिया का यूज जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ लाइकेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रूटिकोस लाइकेंस। फ्रूटिकोस लाइकेंस इज जनरली थैलस, इसमें जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में, या रिबन लाइक होते हैं, ब्रांच्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल्स होगा और रिबन लाइक होगा और फिर ब्रांच्ड फॉर्म में भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रूटिकोस लाइकेंस। एंड मोस्टली कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल की बात करते हैं तो क्लेडोनिया। क्लेडोनिया इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइकेंस व्हिच कम्स इन द क्लास ऑफ दैट लाइकेंस। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड थ्री टाइप्स ऑफ लाइकेंस। द फर्स्ट वन इज क्रस्टोस, सेकंड foliose, and last in fruticose lichens. Okay, so apart from that we know that lichens are generally taking a nutritional and eating materials from those organisms which are generally nearer to lichens. जो lichens के nearer जो भी organism होते हैं ये अपना खाना वही symbiotic mode में, ठीक है, लेते हैं। सो उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो उसी वे में होता है। और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरली रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस आर टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो लाइकेंस में रिप्रोडक्शन थ्री स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज सोडियम, एंड थर्ड इज इजिडियम। ठीक है, तीन प्रकार के रिप्रोडक्शंस है, फ्रेगमेंटेशन, सोडियम एंड इजिडियम। ओके, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन लाइकेन। लाइकेन में सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शंस में सबसे पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। वी हैव स्टडीड इन सो मेनी टाइम्स फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन मींस इफ द लाइकेंस आर एक्सीडेंटली फॉल ऑफ, एक्सीडेंटली मतलब किसी कारण से उसमें चोट लगता है, एंड द फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइकेंस आर जनरली फॉल ऑफ इन द सॉइल, दे आर जनरली अवेलेबल टू रिप्लिकेट ऑन सेल्फ एंड दे प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में ऐसे ही होता है। ठीक है, एक्सीडेंटली उनके किसी भी सेल्स या पार्ट को चोट लगता है, इस कारण से वो ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद अपने नए सेल्स को जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेप टेक्स प्लेस इन लाइकेंस। इसमें क्या होता है, स्मॉल ग्रेन्युल्स आर जनरली अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलस। थैलस में छोटे छोटे से स्मॉल ग्रेन्युल्स आने लगते हैं, एंड आफ्टर दैट दे ग्रेन्युल्स आर जनरली डेवलपिंग इनटू द बर्ड्स, वो बर्ड्स बनने लगते हैं। और जब वही ग्रेन्युल्स अगर बर्ड्स बनने लगते हैं आफ्टर द क्लीवेजिंग, दे बिकम अ इंडिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग, वही इंडिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोडियम। ठीक है, सोडियम उसी को कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइसिडियम। इजिडियम का मतलब होता है स्मॉल सिलेंड्रिकल, स्मॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, ब्रांच्ड। ठीक है, ये जनरली उसी थैलस के ऊपर स्मॉल टाइप के सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड ब्रांच एक और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वही बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इन फ्यूचर दे ब्रेक आउट, एंड आफ्टर द ब्रेकिंग आउट देयर न्यू एंड स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आर जनरली कमिंग आउट एंड बिकम्स अ प्रोजेनी ऑफ द लाइकेन। सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड दे बोथ आर approx
similar. Okay, so that is all the three steps of reproduction: fragmentation, sortium and azidium. Okay, you all have to focus very carefully. Okay, so apart from that, now we are going to discuss that the economic importance of lichens. As we know that lichens is the also an indicator of pollutions. Okay, where the pollutions are generally there in water, generally lichens show the symptoms of pollution. So lichens is also used as a pollution indicator. Most important point you have to focus that in your book I think it is not given, but pollution indicator lichens is also considered. Okay, apart from that, लाइकेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड मटेरियल्स. लाइकेंस का जो यूज होता है वो फूड मटेरियल्स के लिए होता है. जैसे परमेलिया इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइकेंस विच आर जनरली यूज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स. अलग अलग जगह पे फूड मटेरियल के फॉर्म में इनको ऑर्गेनिज्म में यूज करते हैं. नाउ सेकंड, सम ऑफ द लाइकेंस आर जनरली लाइक यूसेनिया इज अ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिंस. एंटीबायोटिक मेडिसिंस बनाने के लिए भी लाइकेंस का यूज होता है. एग्जांपल एक यूसेनिया है जिसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिंस बनाते हैं. ओके, some of the aroma is a special type of fragrance which are generally given in incense stick. Incense stick का मतलब होता है generally in Hindi we used as अगरबत्ती. Okay, aroma flavor, oils, creams और powder generally preparation के लिए हम लोग lichens का use करते हैं. So lichens are generally used for preparation of incense stick, अगरबत्ती, second oils, creams and powder. So all these things are generally prepared from the lichens. Okay, apart from that there is a dyes for clothing material. कपड़ों को कलर करने के लिए बहुत सारे डाइस हमने तैयार करते हैं, जैसे ब्लू कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, एंड दीज ऑल आर द थिंग्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेंस. और ये हम लाइकेंस से ही ऑब्टेन करते हैं. ओके, सो दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लाइकेन. ओके, नाउ नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइकेन. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइकेन एंड इफेक्ट बोथ आर सेम. हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं तो लाइकेंस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ लाइकेन. सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये, दे ऑल्सो स्पॉइल आवर विंडो ग्लासेस. जो कांच की ग्लासेस होते हैं जनरली लाइकेन उनके ऊपर लगे उनके ऊपर रस्टिंग करते हैं, एंड दैट टाइम आवर विंडो विल बिकम टोटली ब्लैक इन कलर. ठीक है, वो धब्बे बन जाते हैं, स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं. दैट इज द फर्स्ट हार्मफुल इफेक्ट. एंड सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट इज दैट lichens are generally causes disease, skin diseases in human beings. Okay, so it is all about the lichens. Next we have to discuss that the exact definitions of virus and who has first time introduced the virus in our science. Okay, and after that we have to also discuss the basic characters of livings and non-living. So here we have to discuss that the virus, a very harmful organism for all the living beings and animals and plants also. Okay, virus play a very dangerous role in the plant, in animals, and also the most of the small organisms. Okay, so first we have to discuss the virus. Virus is a word which is generally came from the Greek word and that means morbid poison, जिसका मतलब होता है morbid poison means जहर. ठीक है, जहर से रिलेटेड है. एंड फर्स्ट विच कॉजेस इन्फेक्शन. मॉर्बिड पॉइजन्स का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शंस करते हैं जनरली दे आर वेरी रिप्लिकेटिंग टू द इनसाइड द लिविंग सेल्स एंड दे रिप्लिकेट न्यूमरस टाइम्स. बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी बॉडी के अंदर रिप्लिकेट करके अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करते हैं. दैट आर कॉल्ड द वायरस एंड जनरली दे आर सब माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे होते हैं. ठीक है, अ वेरी नेकेड आइज. ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं बाय विच वी कैन नॉट सी विद द help of naked eyes and we generally use to see by electron microscope. Generally हम इनको naked eye से नहीं देख सकते हैं. That time we have to use advanced form of electron microscope by which we have to see the virus. Okay, apart from that the study of virus is called virology and those who are generally studying virus that is called virologist. as a scientist जो वायरस के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजिस्ट एंड द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस हैव बीन डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर आइवानोस्की इन 1842. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल the virus has been introduced by the Dr. Ivanovsky in virus in plants in TMB. TMB means टोबैक मोज़ेक वायरस. टोबैको का जो प्लांट होता है उनमें इन्होंने सबसे पहला वायरस ऑब्जर्व किया गया था. दैट इज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक वायरस. TMB वायरस के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर्स आपके बुक में भी दिया होगा. दीज आर कॉल्ड द TMB. ठीक है, इसी को हम टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, जो जनरली टोबैको के प्लांट्स में हुए थे और ये उस
लीव्स को और पूरे के पूरे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करके आफ्टर दैट दे शिफ्टेड इनटू द अनदर हेल्दी प्लांट्स, उसके बाद दूसरे प्लांट्स में शिफ्ट हो जाते थे, दैट इज कॉल्ड द टोबैको मोज़ेक वायरस। आफ्टर दैट स्टैनली एंड बेजरिक आल्सो सपोर्ट द आवेलोस्की सिस्टम। बेजरिक भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका सपोर्ट किया। आफ्टर दैट स्टैनली ने आया 1931 में, जब ये आया तो ही इज ऑब्टेन्ड वायरस इन अ क्रिस्टल फॉर्म। इन्होंने बताया कि जो वायरस होता है दैट कैन बी अपीयर्ड एज अ क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल के फॉर्म में भी अपीयर्ड हो सकते हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू डिस्कस सम जनरल कैरेक्टर्स of virus. In next video, in next class, we will also discuss some important factors of virus. Okay, so here virus are granular structures. Okay, generally virus has a granular structure, means circular type, and most important they cannot be separated easily. इनको easily किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सेपरेट नहीं किया जा सकता, that will be very difficult and shows high potential in host cell. जिस होस्ट सेल में ये एंटर होंगे उस होस्ट सेल में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। ओके, आफ्टर दैट the virus are very sensitive to the temperature and humidity. Okay, most important point, virus are very sensitive to temperature and humidity. It means that if you are increasing the temperature, definitely the virus will also destroy. So these are the very short notes of virus. After that we will also discuss the living features of virus and non-living features of virus. Till then, whatever I have taught you, you all have to revise very carefully, and if you have any doubt you can contact me. Thank you, students.